Yes. Hello. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Students at home, are you able to follow my instructions? Hello? Yes, ma'am. Okay, fine. Are you able to hear clearly? Yes, ma'am. Okay, fine. Now, in our previous class, we have completed lesson number 8, that is the shirt in the market. And hope you have understood that lesson. You have gone through the video and all. If any doubt, anybody having any doubt in that? Very easy. Who all are making more profit in that lesson? The producer, the laborer class, who the big business man. Clear? So that lesson we ended there. That big companies who are making profit, big companies and all are making the profit. Now today we are going to start with this lesson, struggle for equality. Now as the name indicates, struggle for equality. That means struggle for equality to raise the voice against inequality, discrimination. किसी के खिलाफ आवाज उठाना, किसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा? अगर आपको अनइक्वालिटी है, आपको इक्वल नहीं माना जा रहा है कहीं पर, तो उसके खिलाफ लोग आवाज उठाया है लोगों ने, एंड दे गॉट द जस्टिस आल्सो. So struggle for equality, in this lesson we are going to read about how people had fought for the equality. Discrimination के खिलाफ आवाज उठाई. Struggle for equality, for equality that doesn't mean कि हमने चूड़ी चाकू और ये कुल्हाड़ी वगैरह लेकर के, नो. It is in the form of धरना, रैली, चक्का जाम, हड़ताल वगैरह करके, to raise the voice, स्लोगन बना करके, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा करके हमने अपना फीलिंग एक्सप्रेस की ताकि हमें इक्वालिटी मिले. तो इस टाइप से हम बोलते हैं स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. Now as you know that previously in early years there was much discrimination made based on caste, color, creed. पहले जमाने में कास्ट, ये ब्राह्मण कास्ट का, ये वैश्य शूद्र कास्ट का, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था बेस्ड ऑन सेक्स. ये मेल है, ये फीमेल है, ये गर्ल है, ये बॉय है. बॉयज को कम प्रेफरेंस, गर्ल्स को कम प्रेफरेंस. गर्ल्स को जाने का, स्कूल जाने का अधिकार, काम करने का, गर्ल्स को काम करने का, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था पहले. बट नाउ for the fight for struggle for equality, now you are in the position that girls and boys together are sitting and having the knowledge, and that is the education. ये सब किसका नतीजा है? ये हमारे पहले जो लीडर्स थे उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है ताकि काफी वुमेन्स भी थे उसमें जिनों की वजह से हम लोगों को ये अधिकार मिला कि हम अब इक्वल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं. एनी ऑक्यूपेशन वी कैन ऑफ, पहले तो सिर्फ क्या था, ओनली टीचिंग और नर्सिंग में, बट अब वी कैन ऑफ फॉर एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं. So this is done because of the struggle, the fight. Previously caste discrimination was there, but now due to the struggles of our leaders, now we don't see much caste. There is a caste discrimination still there in the backward areas, in the rural areas, in the conservative background and all. But still we find
that अब इतना caste system नहीं है, that is why you all are getting no religious discrimination is there, सब religion के लोग बैठते हैं साथ में, पहले discrimination was there on the basis of religion also. So all these are the reasons why, just because of the struggles which have been done by our leaders, by our past people, then early people, only due to that we are getting the equal position as such now. Clear? आगे समझ में हम इसमें क्या पढ़ेंगे फिर हम स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी लाने के लिए सोसाइटी में हमें इक्वल पोजीशन मिले, इसीलिए हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी या कैसे पोजीशन लेते हैं सोसाइटी में वो हम देखेंगे। इसमें मोस्टली हम फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव में देखेंगे कि फिशर वर्कर्स ने कैसे स्ट्रगल लड़ी अपनी राइट लेने के लिए, राइट टू फिशिंग, फिशिंग का अधिकार लेने के लिए तवा जो रिजर्वायर था उसमें उनको मना कर दिया गया था, क्योंकि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से आदमी दे दिया गया था, तो उनको मना कर दिया गया था कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, और वो लोग दूसरे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे वो दूसरे लोगों को हायर करके और उनसे काम लेते थे फिशिंग का काम, और जो वहाँ पर्टिकुलर विलेज के पीपल थे उनको वो लोग कहते थे हटो यहाँ पर आप लोग काम नहीं करोगे। तो हाउ दीज विलेज पीपल हैड फॉट द स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स फॉर फिशिंग, इस टाइप का हमें स्ट्रगल देखने को पढ़ने को मिलेगा। नाउ दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ in this book you have read about people like Kanta, Ansari, Bilani and Swapna. You all are familiar of these words, Bilani, Ansari and all. Why? Because we have seen that they were discriminated on one or the other reason. कुछ ना कुछ reason के लिए इनको discriminate किया था। Ansari को what basis they were discriminated? Ansari on the basis of religion को। उनका रिलीजन क्या था? मुस्लिम था, इसीलिए उनको क्या नहीं मिल रहा था? फ्लैट रहने को मिलना हो, तो उनके कॉन्ट्रैक्टर ने जो मीडिएटर था, इंटरमीडिएटर, उसने व्हाट ही टोल्ड टू चेंज द नेम, बिकॉज़ बाय नेम ओनली इट वाज दैट इट वाज अंडरस्टूड दैट दे वर मुस्लिम्स एंड द पीपल वर नॉट एबल टू गिव द हाउसेस, बट दे रिफ्यूज्ड टू चेंज द नेम आल्सो, so just because of the religion. Then Kanta, Bilani, Swapna, they were the poor, they were belonging to poor, इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया कि वो poor थे इसीलिए। So this the thread that connects all these lives is that they have been treated unequally, और ये जो इनको कनेक्शन है एक तरीके का, इन सबको स्वप्न आंसर चाहिए कि इनको सबको इनक्वालिटी का सामना करना पड़ा। What do people do when they face such inequalities? अब लोग क्या करते हैं जब इस तरह की inequality face करते हैं? क्या करते हैं? क्या मान सकते हैं अलग करते नहीं? If you raise your voice, अगर आप एक खिलाफ आवाज उठाओगे, then you will be getting justice. You will get your position in the society. अगर आप चुपके से घर में बैठे रहोगे तो ऐसे तो ये पहले लोग भी कर लेते, then we should not have these type of qualities today. जैसा हमें आज मिली है, अगर पहले के लोग चुपचाप से इनइक्वालिटी मान करके समझ के डिस्क्रिमिनेशन बैठ जाते अपने अपने घरों में चुपचाप से, तो आज हमें इक्वल पोजीशन नहीं मिलती। बट तुम लोगों ने जो आवाज उठाई तो हमारी पोजीशन में हमारे को भी अगर देखा जाए तो अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इनइक्वालिटी तो हमें भी आवाज उठानी है, सो दैट अदर पीपल आर बेनिफिट विद आर हमारे कामों से विदाउट है ना। So, do you recall the story of Rosa Parks in chapter 1? Rosa Parks also was discriminated. She was an African American. वो अफ्रीका की थी, अमेरिका में सेटल हुई थी, और just because of the basis of race, स्किन कलर के बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि वो अफ्रीका में थी, बिलोंग करती थी और अमेरिका में वो काम रहती थी। So, the movement was started by him, उसने तो रिफ्यूज कर दिया कि वो नई चीज देखी और इक्वालिटी मांगी थी। So in this chapter you will learn about some of these ways in which people have struggled against inequality. अब आप इस चैप्टर में यही देखोगे कि लोगों को कैसे इनइक्वालिटी को छोड़ करके इक्वालिटी मिली है। Now as you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste, whether they are rich or poor. Now, according to the Indian Constitution, also we are treated equally. Everybody is treated equally. Everybody is equal in the eyes of law. If
आई कमिट अ क्राइम, मैं कॉमन मैन हूँ, मैंने कोई क्राइम किया है, और अगर वही सेम क्राइम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बिग पोजीशन होल्डर ने भी वही क्राइम किया है, तो दोनों को पनिशमेंट इक्वल लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं पुअर को हूँ या मैं कॉमन मैन हूँ तो मुझे ज्यादा पनिशमेंट, मुझे ज्यादा टॉर्चर, और उसको तो हाँ एकदम निकल जाएगा, ऐसा नहीं। So in the eyes of law also everybody is treated equally. No discrimination is based on रिलीजन के बेसिस पे नहीं डिस्क्रिमिनेशन है, सबको एडमिशन मिला है स्कूल में। नो डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि आप लड़की हो या लड़का हो, उसके बेसिस पे भी आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, आपको इक्वल पोजीशन मिल रही है सोसाइटी में भी। देन rich and poor, whether rich and poor, everybody is. But previously, in the case of Om Prakash Valmiki, if we remind that story, Om Prakash Valmiki belonged to the backward class, Dalit class, and he was made to sit down on the floor while others were getting the high class people, children were getting education, they were sitting on the top. He was sitting down, and after the school also, he was asked to feed the food floor and all. So this was the discrimination earlier. But now everybody, whether of each class, caste, sex, religion, everybody is sitting there equally to get the education. So Indian Constitution also, according to Indian Constitution also, everybody is treated equally. Next, all adults in India have the equal right to vote during elections. One more thing from which we can say that in India everybody is treated equally. What is one more feature? The universal adult franchise. Universal adult franchise means 18 years and above 18 years. Any citizen of 18 years and above 18 years have what? The right to vote. You can cast your vote during the election and you can choose your representative. आप अपना उम्मीदवार चुन सकते हो जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तो वो गवर्नमेंट भी क्या है? According to your likings only the formation of government is there. So you have been given the right to choose the government to rule the country. जो रिप्रेजेंटेटिव आपने चूज किया है वो किसके भी आप रूल कर रहा है, वो आप ही के भी आप ही ने चूज किया, आप ही के भी आप रूल कर रहा है, गवर्नमेंट पोजीशन लेके बैठा है। तो दैट इज व्हाई नाउ दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज इज आल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच शोज दैट एवरीबॉडी इन इंडिया इज ट्रीटेड इक्वली। इतना तो समझ में आया है। Now, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives. Now, the power of ballot box means जो आप वोट डालते हो, citizen जो डालते हैं, that is the power of that yours to show कि आपको अधिकार है कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, कौन नहीं। That is the power of ballot box. कि आपकी के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, आपकी के अकॉर्डिंग आप नहीं चाहोगे तो 5 साल बाद अगेन उनको आप दोबारा चूज नहीं करोगे, दोबारा उसके वोट नहीं दोगे और दूसरी गवर्नमेंट को आप बनाओगे। तो दैट इज योर पावर ऑफ बैलेट बॉक्स। But this feeling of equality that the ballot box provides, because the vote of one person is as good as that of another. अब एक जने का जो इम्पोर्टेंस है वोट का, वही सबका इम्पोर्टेंस है इक्वली। ये नहीं कि आपने वोट डाला 18 इयर्स का एक सिटीजन ने डाला वोट, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जितना 65 इयर्स ओल्ड जो डाल रहा है उसका वोट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, ना हिंदू का ना मुस्लिम का, एवरीबडी वेदर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन 18 इयर्स एंड अबव हैज द इक्वल राइट, और उस इक्वल वोट का वोट हैज इक्वल वैल्यू। वैल्यू भी उतनी ही है, आपका वोट काउंट होगा, ऐसा थोड़ी ना कि आपका वोट काउंट नहीं होगा। आप चाहे रिच हो, आप पुअर हो, आप कोई भी कास्ट हो, आपका वोट भी काउंटिंग में जाएगा। But this feeling of equality that the ballot box provides, because the vote of one person is as good as that of another, does not extend the most people's life. Now, as you have read, the increasing privatization of health services and neglect of government hospitals have made it difficult for most people like Kanta, Hakim Sheikh, and Aman to get good quality health care. Now, Kanta, Aman, Hakim Sheikh, who were they? They were of poor, they belong to poor family.
they could not afford the cost of private hospitals. Okay, private hospitals, you know the comparison between private and government. Government is low cost, private is high cost, plus many facilities are there, but just because they are poor people, they could not afford the cost of private hospital and they are forced to go to government hospitals. Then these people do not have the resources to afford expensive private health services. Resources नहीं है कि इतना पैसा नहीं है कि वो वहाँ पर private hospital में अपना treatment करवा सकें. Now that shows, that makes them feel little bit discriminated. कि हम इतना पैसा नहीं है हमारे पास तो हम आज private hospital में नहीं जा सकते. Similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. Now, अब जो जूस बेच रहा है कॉमन पर्सन, स्ट्रीट वेंडर, ठेले पे कोई जूस बेच रहा है, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा. आप लोग क्या प्रेफर करोगे? बड़ी शॉप पे जाएंगे, उसका क्या मजा का ऐड आया है, वो अच्छी ड्रिंक है, आप वही जूस पिएंगे, चाहे वो नींबू पानी अच्छा सा बना के दे रहा है, बट वो नहीं, हम क्या पिएंगे? मजा में उसका ऐड आ रहा है, वो अट्रैक्टिव है, इसीलिए. तो इस टाइप से भी प्रेफरेंस बेस्ड होता है कि ये भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हम शो कर रहे हैं. ये क्या है, इसका नहीं, वो थोड़ा अट्रैक्टिव वे में सेल आउट हो रहा है जूस उसका मैंगो का, तो आप वो प्रेफर करोगे, और वही मैंगो का जूस अगर ये दे रहा है तो आप वो नहीं लोगे कि पता नहीं कैसा बनेगा, क्या है. ठीक है ना. Now, similarly, the man who sells juice to India, Swapna does not have sufficient resources to grow cotton. अब उसके पास sufficient resources है, pesticide नहीं था, seeds नहीं थे, cotton seeds नहीं थे, तो she has to take loan from the trader and to grow the crop. And this forces her to sell her cotton at the lower price. और इसीलिए उसको force होना पड़ा, उसके trader ने पैसा दिया, उसको उसको cotton देना पड़ा. Because that was the promise made between the trader and the Swapna. After cotton was produced, she has to sell all the cotton to the trader back because she has taken the loan from the trader, and that is why she has to sell the cotton at the lower price. इतना पैसा उसको trader को दिया, trader ने दिया, इसलिए भी उसको satisfy होना पड़ा क्योंकि promise कर दिया था. This forces her to sell her cotton at a lower price. Milani, like the millions of domestic workers in across the country, forced to endure the insults and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something of her own. Milani का now we have not read the story of Milani, but Milani was also a domestic maid, housemaid. उसको भी insult और humiliation से सहना पड़ता है because she has not enough money. मनी रिसोर्सेज भी मनी नहीं है इतना कि वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करे और खुद अपना बिजनेस कमा ले, बट उसको हाउसमेड का काम करना था और इसीलिए वो दूसरों के अंडर में काम कर रही है, तो उस चीज को सुननी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द लो पुअर बैकग्राउंड. So, poverty and lack of, you can underline these bold lines, poverty and lack of resources continue to be the key reason why so many people lives in India are highly unequal. Now, main reason for this inequality in India, अगर इंडिया में कहीं हम inequality देखने को मिल रही है, तो main reason, what is the main reason? गरीबी. Poverty means गरीबी और lack of resources means पैसे की कमी. उनके पास इतना कुछ सामान नहीं है कि वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रख सके. तो पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज आर द टू मेन थिंग्स व्हिच is due to which this discrimination or inequality prevails in India. Now, on the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find any apartment for over a month. Now, in other case, we say of Ansaris. Ansaris, they were poor, they belong to poor family. Ansaris, no, they had the money, they had the resources, they could pay. पैसा देकर के वो घर खरीद सकते थे, but just because of the religion, they were discriminated. तो कुछ यहाँ पर एक resources available हैं, but just because of the basis of religion or not, they are treated unequally. People were reluctant to lease them an apartment because of their religion.
अब रिलेटेड टू रिलीजियन इनको अपार्टमेंट देने को इनकार कर दिया अंसारी को लोगों ने जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन. ओम प्रकाश वाल्मीकि to sweep the school yard was because he was Dalit. Om Prakash Valmiki also belonged to Dalit. Dalit is a backward class, and that is why he was asked to sweep the school. Now you have also read that the work women do is often considered of less value. Now you have also known that whatever work women do, it is considered of less value as compared to the men. जो आदमी लोग काम कर रहे हैं, अगर वो ऑफिस जा रहे हैं, वो they are working in the office, and whole day the woman is working in the house, household work कर रही है वो, तो इतना इम्पोर्टेंस उनको नहीं दिया जाता है, जबकि वो जो men जो काम कर रहे हैं ऑफिस में उनको ज़्यादा. So the discrimination is based on that also. All these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background, as well as because they are women. और इसीलिए वो कभी-कभी social और cultural background की वजह से, social और cultural background नहीं, in case of Ansari Jan, Om Prakash Valmiki we have seen, and in case of this work of men and women if we see, then women are discriminated. Now discrimination, you can underline also this. Discrimination on the basis of person's religion, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India. अब पहला हमने देखा which factor, poverty and lack of resources. Poverty and lack of resources was the main reason for inequality in India. Now another reason for inequality in India is just now religion, caste and sex. तो ये भी अब एक फैक्टर बन गए हैं जब यह इनइक्वालिटी देखने को मिलती है इंडिया में. So often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify whether one aspect of inequality ends and others. लेकिन कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि सचमुच में इनइक्वालिटी हो रही है कि नहीं हो रही है. As you have read, Dalit, Adivasi and Muslim girls drop out of school in large numbers. As you have read about Adivasi marginalized school, you have read about उसमें क्या पढ़ा कि मुस्लिम लोग और आदिवासी लोग में ज्यादातर ड्रॉप आउट होता है. ड्रॉप आउट मीन्स द गर्ल्स ड्रॉप आउट मोस्टली दीज कम्युनिटीज बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं. ड्रॉप आउट द स्कूल मीन्स बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं. मोस्टली कहाँ होता है आदिवासी में और मुस्लिम बैकग्राउंड में. ये पहले होता था बच्चों को भी इक्वालिटी देना, मुस्लिम गर्ल्स को भी एजुकेशन मिल रही है. दिस इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल of our people, but previously Adivasis and Muslim girls drop out was more. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम गर्ल्स और आदिवासी में देखने मिलता था कि लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती थी. क्यों? Because not much importance was given for the girls education. ठीक है ना. आदिवासी कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. तो वो लंबा वे कवर करने के लिए भी वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं. इतनी लड़कियां जाएंगी मार्केट से होते हुए जाएंगी, तो इसलिए वो गर्ल्स को पढ़ाना छोड़ देते हैं. मुस्लिम गर्ल्स में भी देखिए वो अभी तो सब पढ़ने को मिल रहा है, पर पहले क्या था पर्दा प्रथा वगैरह सब थी, तो वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम गर्ल्स बाहर आए और हायर एजुकेशन मिले. उनको तो थोड़ी बहुत पढ़ना लिखना आता है, उतना ही उनको दी जाती थी एजुकेशन. अब नहीं है, अब जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल विच वाज अर्लियर. Now struggles for equality. Now we come to the next paragraph. The next topic, that is struggles for equality. कैसे struggles हुई है equality के लिए. Throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. Now पूरे अगर हम वर्ल्ड में देखें तो हर कम्युनिटी, हर विलेज, हर सिटी, हर टाउन में हम देखेंगे कोई ना कोई ऐसा पर्सन देखने को मिलेगा जिसने इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई है और उसको उसमें सबने उसका साथ दिया है और उनको क्या मिली, कामयाबी मिली, उसको जस्टिस मिला है. These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they
विटनेस। अब वो एक तरीके से उस सिचुएशन में रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन वाली सिचुएशन में, इनइक्वालिटी सिचुएशन में रहे हैं, तो वो उन्होंने ही इस तरीके की आवाजें उठाई है, खिलाफ लड़ी है कि उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलना था, इनइक्वालिटी वाली। और they may be well respected because they treat all persons with dignity and care. अब इनको क्यों इम्पोर्टेंट पोजीशन सोसाइटी में इसलिए भी मिली है क्योंकि उनकी जो रिस्पेक्टफुल पोजीशन है, क्योंकि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है टू गेट इक्वल पोजीशन। अनदर थिंग इम्पोर्टेंट इज दैट दे ट्रीट अदर पीपल आल्सो विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। दूसरों को भी, अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे तो नेचुरली वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। क्लियर? तो दिस इज गिव एंड टेक। तो these people who had fought for the inequality, वो सिचुएशन उसने तो फील की है इनइक्वालिटी की डिस्क्रिमिनेशन की, इसलिए उन्होंने आवाज उठाई। और जब उन्होंने आवाज उठाई तो everybody was with that person and they have respected that person who had raised voice against it, just because not only he has raised the voice against inequality or discrimination, but इसलिए भी कि उन्होंने उस पर्सन ने इन लोगों की भी रिस्पेक्ट की है कि उनको भी रिस्पेक्टफुल पोजीशन देनी चाहिए। Often some of these persons become very more widely recognized because they have the support of or represent large number of people who have united to address a particular issue of inequality. और इसीलिए ये लोग ज्यादा लाइमलाइट में आते हैं पर्सन, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग इनके साथ हो जाते हैं। अच्छे के साथ तो सभी होंगे, अगर आप अच्छा काम करने निकलोगे तो सब साथ देंगे, कोई बुरा काम करने निकलोगे तो भी सब साथ देंगे, बट वो फेयर साथ नहीं दे रहे हैं आपका, फेयरली आपके साथ नहीं है, वो अपना खुद का बेनिफिट मांग रहे हैं। तो यहाँ पर तो जो ये लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट फिगर रहते हैं क्योंकि एक तरीके से काफी लोग ये साथ रहते हैं अच्छा करने के लिए, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. और ऐसी काफी issues, ऐसे काफी सिचुएशन कंडीशंस ऐसी सोसाइटी में आ जाती हैं जब इन लोगों ने आवाज उठाई है और इनकी आवाज को दबाया नहीं गया है, बस किया गया है, इनका साथ दिया गया है ताकि सोसाइटी में चेंज ला सकें और जो कंडीशंस हैं, जो सोशल इवल्स हैं, जो प्रीवियसली उनसे लोगों को सबको बाहर निकाल सकें। The Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh, underline this. The Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue. तवा मत्स्य संघ क्या है? ये एक इश्यू है जहाँ पर लोग एक साथ आए आगे और उन्होंने एक तरीके से स्ट्रगल किया अपने राइट के लिए, अपना राइट, अपना अधिकार लेने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड देयर आर मेनी सच स्ट्रगल। तवा मत्स्य संघ इसके बारे में हम डिटेल में अभी इस लेसन में और पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग इतना ही देखें। इसी तवा मत्स्य संघ की जैसे ही जैसे बीड़ी वर्कर्स कौन है? जो बीड़ी बनाने वाले हैं वो क्या है? छोटे लोग ही हैं, जो बीड़ी बनाते हैं। तो जो बीड़ी बनाने वाले हैं, फिशर को, मच्छी पकड़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर में काम करने वाले फार्मर्स, लेबरर हो गए, स्लम वेलर्स कौन है? गंदी बस्ती में, कच्ची बस्ती में कहीं भी ले लेंगे ये सब है ना, वही खाए वही पीले वही बोले सब, तो कच्ची बस्ती गंदी बस्ती, तो they are slum dwellers, ठीक है। And each group is struggling for justice in its own way. ये हर ग्रुप के लोग अपने ही अपने अंदाज में ये लड़ाई कर रहे हैं इक्वल पोजीशन लेने के लिए सोसाइटी में। There are many also attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources. और इन लोगों ने कलेक्टिवली कोऑपरेटिव खोल रखी है, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया है और वो यूनाइटेडली उसमें काम कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज सुनी जाए गवर्नमेंट तक और उनको इक्वल मिले, इक्वालिटी मिले। नाउ द चैप्टर बिगिंस विद तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ is an organization. When dams are built or forest areas cleared, centuries when dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. अब कभी जब डैम बनता है, डैम बांध, नदी के ऊपर बांध क्यों बनाते हैं? ताकि फ्लड वगैरह नहीं आए,
पानी रोका जा सके, ठीक है ना। तो पानी रोकने के लिए जब डैम बनाया जाता है कभी या कभी नेशनल पार्क या सेंचुरीज बनाई जाती है, तो अब वहाँ पर कहाँ बनाई जाएगी, जगह चाहिए। देन फॉर दैट फॉरेस्ट एरिया क्लियर, फॉरेस्ट एरिया है या उसमें जो लोग रह रहे हैं आसपास के एरिया, उनको क्या करना है, उनको वहाँ से हटाया जाता है। आप यहाँ हटो और कहीं और जाके सेटल हो, ठीक है ना। तो होल विलेज आर uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives as well. अब लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप लोग अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाओ और अपनी स्टार्ट अगेन लाइफ करो। अब जैसे आप लोग ग्रैंडफादर फादर सब यहीं पर रहे हैं, एक ही जगह पे रहे स्टार्टिंग ऑनवर्ड, और आपको अचानक से कोई आकर कह दे कि आपको अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ेगी, देन विल यू बी एबल टू cope up with the situation? नहीं, you will feel pain, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा, बिकॉज सदियों से आप जिस घर में रह रहे हो, आपके नाना दादा और आपको अचानक से कह दिया जाए जगह छोड़ो, तो इट विल बी जस्ट अ टेंशनफुल सिचुएशन फॉर यू और फॉर योर पेरेंट्स। कि अब वो नई जगह ढूंढना, पहले तो फर्स्ट ये कहाँ पर रहना है, नई जगह जगह ढूंढना, फिर घर ढूंढना वहाँ पर कि कहाँ जाना है, फिर मम्मी पापा के लिए जो वो एरिया में वो काम करते थे ऑक्यूपेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट में, अब वो जहाँ जाएंगे वो जॉब ढूंढेंगे, फिर बच्चों के लिए, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए फैसिलिटीज, एक तरीके से स्टार्ट अगेन द लाइफ, to start again the life becomes very painful। वापस से आप इस तरीके से जैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो उसके बाद ऐसे करते हैं दोबारा से आपको सब कुछ नया करना पड़े, तो दैट विल बी वेरी टेंशनफुल। तो इसीलिए इस टाइप से ये हुआ था और लोगों ने आवाज उठाना शुरू करा। Most of these people are poor in urban areas to बस्तीज in which poor people live are often uprooted। और अर्बन एरियाज में मोस्टली क्या होता है, ये लोग बस्ती में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट मिल रहे बन गए, अब वो क्या अपार्टमेंट वाले क्या बोलते हैं, इनको हटाओ सामने से, इनको दूर भेजो, कभी अच्छी बस्ती गंदी बस्ती, हमारे को पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर, तो अच्छा नहीं लग रहा है। इस टाइप से मोस्टली अर्बन सिटीज में these बस्तीज आर डिस्प्लेस्ड, उनको वहाँ से हटाने को फोर्सफुली कहा जाता है। Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations। आपको कहाँ बोला जाता है जाने के लिए, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्कर्ट्स मींस आउटस्कर्ट्स शहर के बाहर, शहर के बाहर जाके रहोगे, शहर के बाहर जाके रहोगे तो आपको क्या स्कूल भी दूर, शहर के अंदर है स्कूल हॉस्पिटल जॉब वगैरह सब चीज दूर हो जाती है, और इसीलिए जो डेली लाइफ है वो डिसबैलेंस हो जाती है। This displacement of people and communities is a problem that has become quite widespread in our this displacement of people and communities is a problem that has become quite widespread in our country। हमारे देश में ये अब आजकल कॉमन हो गया ये बात, ये कच्ची बस्ती जल्दी बस्ती को हटाओ दूसरी जगह जाओ, आज ये डैम बन रहा है, आज ये इंडस्ट्री बन रही है, आज ये फैक्ट्री यहाँ पर बन रही है, तो वहाँ से वो लोग जो रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस करो, तो ये आजकल कॉमन हो गया है। People usually come together to fight against this, और मोस्टली लोग आपस एक साथ आते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। There are several organizations across the country fighting for the rights of the displaced, और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन सामने आए हैं और अपने लिए राइट के लिए लड़ाई करी कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ठीक है ना। कुछ तो हट जाते हैं, ठीक है तुम यहाँ जाओ, वहाँ नहीं, वहाँ से आगे, बट कुछ उन्हें आवाज नहीं कि हम नहीं छोड़ेंगे अपनी जगह। In this chapter we read about Tava Matsya Sangh। Now underline this, what is Tava Matsya Sangh? In this chapter we are going to read about Tava Matsya Sangh, a Federation of Fisher Workers Cooperative। क्या है तवा मत्स्य संघ? एक फेडरेशन है फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव, और फिशर वर्कर कोऑपरेटिव क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है which is fighting for the displaced forest dwellers। जो displaced forest dwellers, जो forest dwellers कौन है? जो जंगल में रहते हैं, उनको डिस्प्लेस किया गया है, उनको हटा दिया गया है, इसलिए फिशर वर्कर कोऑपरेटिव बना है।
ताकि वो उनकी फाइट कर सके, उनके लिए लड़ाई लड़ सके। ये उनको डिस्प्लेसमेंट दिया है, वो नहीं चाहिए। आगे बात समझ में अक्षत। Now originating in Mahadev Hill. Now this Tava is a river. It is originating in Mahadev Hill. कहाँ originate हुई है ये? महादेव हिल में of छिंदवाड़ा district. कहाँ पर है महादेव हिल? छिंदवाड़ा district में. The Tava flows through Betul. बेतुल के अंदर से निकलती है ये तवा बिफोर ज्वाइनिंग नर्मदा एंड होशंगाबाद। नर्मदा रिवर और होशंगाबाद रिवर को ज्वाइन करने से पहले ये बेतुल के थ्रू निकलती है। बेतुल भी गांव है, बेतुल जो रिवर है या फिर गांव है उसके साथ होती भी है, नर्मदा होशंगाबाद को ज्वाइन करती है। द तवा डैम बिगेन टू बी बिल्ट इन 1958। अब तवा डैम जो है वो 1958 में बनना शुरू हुआ है एंड कंप्लीटेड कब हुआ है? It submerged large areas of forest and agricultural land. अब जब तवा डैम बना, तवा पे डैम बना, बांध बना, तब इससे क्या हुआ? काफी एरिया फॉरेस्ट का सबमर्ज हो गया, हटा दिया गया, खत्म हो गया, मर्ज हो गया और एग्रीकल्चरल लैंड भी हटा दी गई। तो फिर इससे क्या बन गया? बांध बना दिया गया। The forest dwellers were left with nothing. Some of the displaced people settled around the reservoir, and apart from their bigger farms, found a livelihood in fishing. They earned very little. Now these forest dwellers were left with nothing. फॉरेस्ट भी ले लिया गया, एग्रीकल्चरल लैंड भी ले ली, अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो इसीलिए वो क्या हो गए? जब ये डैम बना तो एक रिजर्वॉयर, बहुत ही रिजर्वॉयर जहाँ पर पानी इकट्ठा करके रखे जाते। तो डैम बना तो पानी इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर रिजर्वॉयर भी बना। तो वहाँ पर वो आसपास ये जो बता दिया गया था वो आसपास वहाँ पर रहने लगे और वहाँ पर थोड़ा बहुत फिशिंग करके वो अपनी लाइफ चलाने लगे। आया समझ में? वो छोड़कर नहीं गए, वो वहीं रिजर्वॉयर डैम के पास एक रिजर्वॉयर था, वाटर कलेक्शन का एरिया था, वहाँ पर रहकर के फिशिंग थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत आमदनी होती थी, पैसा मिलता था, उसके लिए वो अपना गुजारा करने लगे। Now with the blue block, the dam is built across a river at sites where one can collect a lot of water. Now what is a dam? It is built across the river. River के across बनता है ये डैम, बांध बनता है where one can collect lot of water. जहाँ पर एक जना खूब सारा वाटर इकट्ठा भी कर सकता है। This form a reservoir and as the water collects it submerges vast area of land. और ऐसे ही एक रिजर्वॉयर है ये जहाँ पर खूब सारा वाटर इकट्ठा करके रखा जाता है, तो इसीलिए वहाँ का जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है एक तरीके से पानी में। ऐसे समझे? Then this is because the wall of the dam across the river is high and the water spreads over the large area. Large area में water spread हो जाता है. And this is the photo of the submerged caused by Tehri Dam. अब ये जो फोटो दिया गया है ये एक टेहरी डैम का है। ये जो फोटो है, पिक्चर दिया है वो टेहरी डैम का है, उत्तराखंड में। टेहरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड में। You can underline this. Where is Tehri Dam? It is in Uttarakhand. The old Tehri, the old Tehri town and 100 villages some totally and some partially were submerged by the dam. और इस Tehri Dam से क्या हुआ? 100 villages इस Tehri Dam बना था वो सबमर्ज हो गए, पानी में डूब गए और कुछ तो पूरी तरीके से डूब गए और कुछ थोड़ा बहुत बच गए। Nearly 1 lakh people were displaced और ज्यादातर 1 lakh people क्या हो गए? उनको ये बोल दिया गया। इतना समझ में आ गया? Now in 1994, the government gave the right of fishing in Tawa reservoir to private contractors. अब तवा डैम बना, रिजर्वायर बना, तो वहाँ के जो लोग थे वो लोग रिजर्वायर के आसपास है लोग प्रॉपर्टी, तो वहाँ के लोग जो थे रिजर्वायर में फिशिंग करके अपनी लाइवलीहुड चलाने लगे। बट इन 1994 हम क्या देखते हैं कि ये गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में दे दिया ये रिजर्वायर और उनको ये राइट दे दिया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो ही फिशिंग करेंगे। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा? जो वहाँ के लोकल पीपल थे जो फिशिंग करते उनको कह दिया हटो, विलेज के पीपल उनको कह दिया हटो और वो जो फिशिंग के लिए बाहर से लेबरर्स लाने लगे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, आगे इतना समझ में? फिर क्या हुआ? द कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन टू थ्रेटन द विलेज।
villagers who did not want to leave by bringing in adequate rooms. और जो विलेजर्स मानने को तैयार नहीं थे, वहां बैठने को तैयार नहीं थे, तो उनको डराया धमकाया भी गया। किसने डराया धमकाया? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को उनको राइट मिल गया था वहां पर रहने का, तो उन्होंने विलेजर्स को डराया धमकाया कि छोड़ के जाओ और तुम सब की लाइट बल्ब मशीन चाहिए, सबको यहाँ सबसे हटा दिया जाएगा, सब कुछ तुम्हारा यहाँ वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect the rights. अब villagers ने क्या करा? साथ यूनाइट हो गए। एक जना बोलेगा तो कुछ नहीं होगा, सब साथ में आवाज उठाया विलेजर्स ने कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके खिलाफ आवाज उठाई। The newly